के लिए दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है ना। तो ये है जनाब, इसको डिफिनीशन क्या है इसकी। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशिएंसी ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और इट्स एक्शन and is characterized by the passage of copious amounts of dilute urine, ठीक है। जब ये हार्मोन डेफिशिएंट हो जाता है तो पेशेंट जो है वो यूरिन उसका बहुत लार्ज वॉल्यूम में पेशेंट पास करता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस, one is central diabetes insipidus and the other one is nephrogenic. Central diabetes insipidus is due to failure of the pituitary gland, that is posterior pituitary, failure of the pituitary gland to secrete adequate amount of ADH, while nephrogenic diabetes insipidus results from the renal tubules of the kidneys fail to respond to circulating ADH। तो क्या मतलब हुआ, जो सेंट्रल है उसमें वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH रिलीज नहीं हो रहा, वाइल नेफ्रोजेनिक जो है उसमें ये सेकंड वन जो है नेफ्रोजेनिक, तो इसमें यह है कि पिट्यूटरी से ADH रिलीज होता है बट द रीनल ट्यूब्यूल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड। तो जो कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म है यूरिन का, ड्यू टू अंडर द इफेक्ट ऑफ ADH, it is lost because of the renal tubules failure to respond to ADH। ठीक हो गया। सो ये दोनों जो हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या नेफ्रोजेनिक हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। द रिजल्टिंग रीनल कंसंट्रेशन डिफेक्ट लीड्स टू द लॉस ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ dilute urine. This causes cellular and extracellular dehydration and hypernatremia. So large amount of water will be lost in the urine and it will result in dehydration and hypernatremia। ठीक है। अब हम causes जरा देखते हैं। Causes of the central diabetes insipidus, इसमें है idiopathic 30%, supracellular tumors, that is pituitary tumors 30% of cases, infections like encephalitis हम पढ़ चुके हैं, tuberculosis of the meninges and brain हम पढ़ चुके हैं, then non infectious granulomas, ठीक है। इसमें sarcoidosis ये एक सिंड्रोम है, हैंड शोल्डर क्रिस्टियन डिजीज, देन ट्रॉमा, हेड इंजरी हो जाए किसी को, और स्कल सर्जरी, लाइक आपको याद हो हमने कहा था कि कुशिंग सिंड्रोम में या एक्रोमेगेली में पिट्यूटरी ट्यूमर को जब ऑपरेट करते हैं तो उससे भी हमें डायबिटीज, ठीक है। ठीक है। और वो स्ट्रक्चर का फिर है जनाब सेंट्रल कंटिन्यूस लाइक अपने हाँ कर सकता है, अंदर या बाहर। जो हमारा पास हो गया ना, जो आप लोग इशू करता है मटेरियल associated with thyroiditis, and there are familial causes like दो किस्म की familial diabetes insipidus है। First one is autosomal dominant and the other one is X-linked inheritance. Then Wolfram syndrome है, also known as Dead-Mite syndrome, like it is characterized by diabetes insipidus, diabetes mellitus, nerve deafness and optic atrophy। ये combination होता है इन patients में, तो इसको हम कहते हैं Wolfram syndrome और Dead-Mite syndrome, ठीक है। इसके अलावा अब ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज क्यों होता है, इसमें प्राइमरी फेमिलियल, दिस इज X-linked recessive, that is severe in boys and mild in girls, ठीक है। and secondary to chronic pyelonephritis, hypokalemia is another cause of nephrogenic diabetes insipidus, and hypercalcemia and protein deprivation. Secondary include amyloidosis,
Other renal diseases like chronic renal failure, obstructive uropathy, polycystic diseases, Sjogren's syndrome, drugs like lithium, colchicine, fluoride, ये सीडोफिविर एंटी वायरल है, ठीक है, डिमेक्लोसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, तो इसके सेकेंडरी काजेज हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। वेरी सिंपल, द पेशेंट विल प्रेजेंट विद पोलीयूरिया, polydipsia, and very increased thirst. They usually have nocturia, that is nocturnal frequency of micturition, or nocturnal enuresis, they pass, जिसे आम उसमें वर्ड्स में बेड वेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। देन hypernatremic dehydration, anorexia, constipation, hyperthermia, and lack of sweating, and symptoms of underlying causes। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं। मेनली आप पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया याद रखें, और ये जो इनका हाइपरन्यूट्रीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से इनको न्यूरोलॉजिकल फीचर्स डेवलप होते हैं, लाइक फिट्स वगैरह, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाइपरनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन एंड इट्स न्यूरोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस, तो उसमें फिर फिट्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। देन ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, दैट इज स्वेलिंग ऑफ द किडनीज ड्यू टू एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। ये है आपका इसके कॉम्प्लिकेशंस। डायग्नोसिस कैसे होगी? फर्स्ट, देयर शुड बी केयरफुल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, एंड बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन you should document the presence of polyuria। इसमें क्या है कि पेशेंट को आप कहें कि अपने यूरिन को मेजर करें, एंड यूजुअली इन डायबिटीज इंसिपिडिस द पेशेंट passes 4 to 15 liters of urine in 24 hours, ठीक है। तो जब इतना ज़्यादा हैवी यूरिन उनका पास होगा लार्ज वॉल्यूम में, देन यू शुड सस्पेक्ट डायबिटीज इंसिपिडिस। फिर करना क्या है आपने? सिंपल, फर्स्ट practically simultaneous measurement of plasma and urine osmolality. Establish the diagnosis in most patients with severe diabetes insipidus, making a water deprivation test unnecessary। जब आप simultaneously plasma osmolality और यूरिन ऑस्मोलैरिटी मेजर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको पेशेंट में? इन लोगों का यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा और प्लाज्मा जो है वो कंसंट्रेटेड होगा। सो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी विल बी हाई और यूरिन विल बी डाइल्यूट। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जब हमें पानी नहीं मिलता तो एडीएच हार्मोन होता है एंड इट प्रिजर्व्स वाटर, सो आवर यूरिन गेट्स concentrated and to keep our plasma osmolality within the normal range. But as in the patient of diabetes insipidus, ADH is not released, so the plasma osmolality will rise, but the urine will still be very diluted। ये पॉइंट आप जरा इसमें समझें, ठीक है। देन प्लाज्मा और यूरिन ऑस्मोलैरिटी के अलावा और जो टेस्ट है वो है यूरिन एनालिसिस, यूरिन आरई जिसे हम कहते हैं, माइक्रोस्कोपी टुगेदर विद प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने कहा कि वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इज हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स करें, ठीक है। और फिर डायबिटीज इंसिपिडस में हमने कहा कि हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है ना, तो वो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में मिल जाएगा, ठीक है। In a normal, well-hydrated subject, plasma osmolality is usually less than 290 milliosmoles per liter, and urine osmolality is between 300 to 450 milliosmoles per liter। ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अब देखते हैं कि पेशेंट्स में क्या होता है। In patients with diabetes insipidus and free access to water, plasma osmolality is more than 295। देखिए अब यहाँ पर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड हो रहा है प्लाज्मा, एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज 50 to 150। देखिए यूरिन इज स्टिल डाइल्यूट। नॉर्मली क्या होना चाहिए
कि जब आपका प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी बढ़ता है तो उस इंक्रीज को प्रिवेंट करने के लिए एंड टू कीप योर प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी विद इन द नॉर्मल रेंज, व्हाट हैपेंस, ADH hormone is released and it concentrates your urine and preserves water to keep the plasma osmolality within the normal range. But what will happen in the diabetes insipidus is there will be no hormone released, so plasma will be concentrated and still the patient will be uh, secreting या passing diluted urine. ये पॉइंट है आपको? हाँ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट वेरी गुड। अब वो केसेस जो कि जिसमें पार्शल ADH डिफिशिएंसी है या फिर यू हैव टू डिफरेंशिएट कि ये सेंट्रल डायबिटीज है कि ये नेफ्रोजेनिक है, उन केसेस में वी परफॉर्म अ टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट। सो वाटर डिप्रिवेशन इज नीडेड पेशेंट with partial AVP. AVP mean arginine vasopressin, ठीक है, arginine vasopressin deficiency, ये ADH का दूसरा नाम है। अच्छा, इसको ADH भी कहते हैं एंड arginine vasopressin भी कहते हैं इसको, और सिर्फ vasopressin भी कहते हैं इस हार्मोन को। For patients with partial AVP deficiency are also to differentiate central diabetes from the nephrogenic. तो इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसका नाम है वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट। ये टेस्ट हम कैसे करते हैं? इट शुड बी डन इन द मॉर्निंग अंडर ऑब्जर्वेशन, हॉस्पिटल में होना चाहिए। 8 आवर फास्ट इज इनफ। आपने 8 घंटे तक पेशेंट को ना फूड देना है, क्योंकि फूड में भी वाटर कंटेंट होता है, और ना उनको आपने क्लीन वाटर नीट वाटर देना है उनको, ठीक है। सो द पेशेंट शुड फास्टिंग फॉर 8 आवर्स। करना क्या है? यू हैव टू weigh the patient hourly and measure plasma and urine osmolality every 2 hours. In normal subjects, plasma osmolality hardly rises. It is usually less than 300, but the urine output is reduced and its osmolality rises to 800 to 1200. ये नॉर्मल लोगों में हो रहा है, ठीक है। आपने पानी बंद कर दिया तो उनका, in order to keep the plasma osmolality within the normal range, what will happen? Their urine will be concentrated and its osmolality will rise up to 800 to 1200 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल लोगों में होगा। फिर पेशेंट्स में क्या होगा? पेशेंट में इसका अपोजिट होगा, उसमें प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी और यूरिन उनका जो है वो डाइल्यूट होगा। अच्छा, एट द एंड ऑफ द टेस्ट ADH इज गिवन 20 microgram arginine vasopressin intranasally or 2 microgram intramuscularly and fluid intake is allowed. फिर क्या होगा? Concentration of the dilute urine confirms central diabetes insipidus and failure suggest nephrogenic causes, ठीक है। से अभी आपने जब पेशेंट का टेस्ट किया तो उसमें पेशेंट में क्या होगा? जो डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट होगा उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेटेड होगा और यूरिन उसका डाइल्यूट होगा, ठीक है। अब आपने उनको ADH दे देना है। तो अगर सेंट्रल काज है जिसमें ADH रिलीज नहीं हो रहा तो उसका क्या होगा? उनका यूरिन जो है वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा और प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी विद इन द नॉर्मल रेंज आ जाएगी। लेकिन अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, नेफ्रोजेनिक, तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें आपका जो है वो यूरिन उसी तरह डाइल्यूट रहेगा और प्लाज्मा उसी तरह कंसंट्रेटेड रहेगा। दिस इज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल एंड nephrogenic diabetes insipidus, and this test is called water deprivation test. ट्रीटमेंट क्या है इसकी? बहुत सिंपल है। ये सिंथेटिक ये जो ड्रग है इसे कहते हैं डेस्मोप्रेसिन, DDT, डेस्मोप्रेसिन। इट इज अ सिंथेटिक एनालॉग एंड इट इज सुपीरियर टू नेटिव AVP, ठीक है। ये सिंथेटिक वाला क्यों सुपीरियर है? नंबर 1, इट हैज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, 8 to 10 hours, and it is more potent. ऑलमोस्ट इसकी जो आपकी एक्टिविटी है 3000 टाइम ग्रेटर देन इट्स
जो आपका ह्यूमन बॉडी वाला है अपना नेचुरल जो है उससे 3000 टाइम्स मोर पोटेंट हार्मोन है ये, ठीक है। तो ट्रीट द पेशेंट विद डेस्मोप्रेसिन। रूट क्या है डेस्मोप्रेसिन का? यूजुअली गिवन इंट्रा nasally but can be given orally as well or even intramuscular for comatose patients or during surgery, ठीक है। Then this desmopressin can also be used in mild hemophilia or von Willebrand. It can also be used to treat nocturnal aneurysm in children. इसके डिफरेंट यूज, ठीक है, लेकिन मेन यूज जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस है, हेमोफिलिया, वॉन विलिब्रांड डिजीज और एन्यूरेसिस। जो आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है उसको कैसे ट्रीट करेंगे? जो डेस्मोप्रेसिन था वो तो हमने सेंट्रल में दिया ना। नेफ्रोजेनिक में क्या है? प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फ्लूइड्स एंड कैलोरीज, देन लो सोडियम डाइट, क्योंकि इन पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो उसके लिए लो सोडियम डाइट करना है। देन यू हैव टू गिव डायूरेटिक्स। अब ये बात जो है लग रही है ना, बिकॉज पेशेंट इज ऑलरेडी लूजिंग लॉट ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन बन रहा है। इफ यू गिव डायूरेटिक इट विल इंक्रीज यूरिन आउटपुट, but the aim of diuretic in this condition is to treat the hypernatremia. You will give a loop diuretic which will enhance the secretion of sodium, excretion of sodium in the urine. So आपका जो पेशेंट का हाइपरनेट्रीमिया है वो ट्रीट हो रहा है इसमें, ठीक है। Then high dose of desmopressin can be given. Then correction of underlying cause, अगर पायोनेफ्राइटिस है उसको ट्रीट कर लें, क्रॉनिक रीनल फेलियर है उसको ट्रीट कर लें, एमाइलोइडोसिस है उसको ट्रीट कर लें, ठीक है। Then drugs include indomethacin, chlorpropamide, clofebrate, and carbamazepine. These are the drugs which can be used to treat nephrogenic diabetes insipidus, ठीक है। ये आपका सिंपल सा एक छोटा टॉपिक था डायबिटीज इंसिपिडस का। तो